Hello student, greetings from Indore Public School. Hope you all are doing well and stay safe at your home with your family and enjoying the lockdown period with doing practice in maths or other subjects. Hope in last lecture we had completed till question number 3 of exercise 3.3. In this lecture we will continue from question number 4 of exercise 3.3. Now let's do. Now, dear student, please see question from your book, page number 51. Question number 4. Draw a rough figure of quadrilaterals. Draw a rough figure of quadrilaterals that is not a parallelogram. वो parallelogram नहीं होना चाहिए, but has exactly two opposite angles of equal measure. But opposite angles क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए. आपने जब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की जब मैंने बात करी थी लेक्चर 2 में, वहां पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया था काइट, जिसके एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल. सो आंसर इज और सॉल्यूशन काइट मेक अ फिगर. यू नो काइट, हाउ कैन यू ड्रॉ? This one, this side and this side are equal and this angle is equal to this angle. Name is A, B, C, D. Measure of angle B is equals to measure of angle D. And figure is a quadrilateral figure is kite. Question number 5. See question from your book. The measures of two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of angles of parallelogram. First you have to draw a parallelogram. Name A, B, C and D. This angle and this angle are called adjacent angle. This angle and this angle are called adjacent angle. This angle and this angle are called adjacent angle. This angle and this angle are called adjacent angle. आप किसी को भी लेकर के करोगे आंसर सेम आएगा. रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2. एडजेसेंट एंगल के एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:2. सो एज्यूम करेंगे लेट the adjacent angle of parallelogram, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, पैरेललोग्राम B 3x and 2x. रेशियो दिया हुआ है 3:2. दैट मीन्स एंगल क्या है? 3x and 2x. x की अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:2 ही आएगा. अब वो x की पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी 3x and 2x. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you know sum of adjacent angle are supplementary. Then 3x plus 2x is equals to 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है? एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा. तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स are supplementary or adjacent angle are supplementary. Then 3x plus 2x gives 5x
x equals to 180 degree divided by 5, we get 36 degree. That means x is equals to 36 degree. Now second question is find the measure of each of the angle of parallelogram. अगर मैंने a को अगर 3x माना था और b को अगर 2x माना था, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c होगा. You know why? Opposite angle of parallelogram are equal. That is equals to 3x and that is equals to 3 into 36 degree, 108 degree. Now second, angle b is equals to angle d. Why? Opposite angle of parallelogram are equal, so 2x is equals to 2 into 36 degree, that is 72 degree. ये रिलेशन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Two adjacent angle of parallelogram have equal measures. दो adjacent angle जो हैं parallelogram के वो क्या है? Equal measures के, equal measurement के हैं. Find the measure of each of angle of a parallelogram. Now तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए. A, B, C and D. पैरेललोग्राम का ये शेप होता है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि क्या बोला है. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स. अगर ये इक्वल हैं, ये भी x है और ये भी x है. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये 90 डिग्री बन जाएंगे तो ये कौन सा शेप हो जाएगा? ये रेक्टेंगल शेप बन जाएगा. A, B, C and D and this. आफ्टर कंडीशन जब हम एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये बनेगा. तो लेट क्या हम मेजर करेंगे? लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स. क्योंकि इक्वल बोला गया है तो हमने x मान लिया, तो दूसरा भी ऑटोमेटिक क्या हो गया? x हो गया. फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ओके फाइन. x plus x is equals to 180 degree. Sum of adjacent angles are supplementary. Sum of angles, adjacent angle of are supplementary. X plus x gives 2x is equals to 180 degree. Then x is equals to 180 degree divided by 2 gives 90 degree. X की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री. That means this parallelogram is a kind of rectangle. ये rectangle शेप बनेगा जिसमें each angle क्या होता है? 90 डिग्री. So hence फाइंड ईच एंगल बोला था. ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सारे एंगल क्या बनेंगे? 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7. द एडजेसेंट फिगर हो. यू कैन सी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. फिगर इज गिवन. The adjacent figure O, H O P E, and this one is a diagonal given. This angle is 40 degree. This angle is Y. This angle is X. This angle is 70 degree. Okay. The adjacent figure O, H O P E, is a parallelogram.
फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू, सॉरी जेड हियर, दिस एंगल इज जेड। एक्स वाई जेड, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अगर पैरेललोग्राम बोला गया है क्वेश्चन में, तो पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे फॉलो होगी, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी भी फॉलो होगा। सो फर्स्ट हमें दिख रहा है, दिस इन पैरेललोग्राम HO is parallel to EP and EH is parallel to PO. So 40 degree is equals to Y. Y equals to 40 degree because alternate angles are equal. और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज HE पैरेलल टू OP है। HE लाइन OP के पैरेलल है, और दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो y की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसे a मान लू, a आप एज्यूम कर सकते हो किसी भी एंगल को, देन a प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। नाउ a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, a इक्वल टू 110 डिग्री। a की वैल्यू 110 आ गई। अब इन ट्रायंगल HOP, आपको सिर्फ HOP को देखना है। आपके पास y की वैल्यू है 40 डिग्री, a की वैल्यू 110 है, तो z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले मैं चाहूंगा कि a इक्वल टू x होगा, a इक्वल टू x बिकॉज अपोजिट एंगल्स, अपोजिट angles of parallelogram are equal. अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 110। नाउ इन ट्रायंगल HOP में देखिए z प्लस y प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज angle sum property of triangle, because angle sum property of triangle, angle sum property of triangle. Now z y is equals to 40 degree and a is equals to 110 degree is equals to 180 degree. Now z plus 150 degree is equals to 180 degree. Now z is equals to 180 degree minus 150 degree, that is 30 degree. Then z is equals to 30 degree, x equals to 110 degree and y equals to 40 degree. x y z की हमने वैल्यू निकाली। इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। पैरेललोग्राम बोला गया तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो पैरेलल लाइन की भी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड सेकंड फिगर इज गिवन, रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x and y, लेंथ आर इन सेंटीमीटर। Here first question is gun. GUNS are a parallelogram, is a parallelogram. 3y minus 1 is equals to 26 because opposite sides are equal in parallelogram. Now 3x is equals to 80 because opposite sides are equal. So GS is equals to UN. Opposite sides are equal in parallelogram. GS given 3
80. Very simple. X is equal to 18 divided by 3 gives 6. X equal to 6. और ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। Now, second, GU is equals to SN. GU is equals to SN. Opposite sides are equal. देखिए कंडीशन कुछ भी दिया हुआ है, एक्स वाई, अगर यहाँ एक्स प्लस वाई भी दे देता है तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते तो वाई की वैल्यू मिल जाती। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ GU इज इक्वल टू 3y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 26। आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने से समझ गए हैं। -1 शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा, 26 प्लस 1 gives 27. Now 3y equals to 27, y equals to 27 divided by 3 gives 9. So y equals to 9 centimeter. In this figure, x is equals to 6 centimeter and y equals to 9 centimeter. Put the value of x. X equals to 3. 3 into 6, 18. That is equals to this one. Now put the value of y. 3 into 9, 27. 27 minus 1 gives 26. Opposite sides are equal. Now second part of question number 8. Find the value of x and y. And this figure is runs. RUNS is a parallelogram. Parallelogram, one property of parallelogram is diagonal bisect each other, so they both diagonal bisect at point, intersection of this point is O. So you can write OR is equals to ON and OEU is equals to OS. Diagonals bisects one another. एक दूसरे को बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो फ्रॉम दिस डायगोनल OU equals to OS, y plus 7 is equals to 20। एक इक्वेशन ये बनेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, x plus y equals to 60। ओके, यहां से हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू यहां पुट करेंगे। सो y equals to 20 minus 7, y equals to 30, y equals to 30. Put this value of y in this equation. So x plus 13 is equals to 16. X is equals to 16 minus 13. X is equals to 3. Now value of x is 3 centimeter and value of y is 13 centimeter in this figure. Question number 9. In the above figure, both risk RISK, risk and clue CLUE are parallelogram. Find the value of x. Here two parallelograms intersect to each other. ये फिगर कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है और आपको इससे घबराना नहीं है। हम सबसे पहले रिस्क को अलग करते हैं। इस फिगर को भूल जाइए, आपको रिस्क दिख रहा है RISK, ई को भी भूलना है, तो आपको रिस्क ऐसा दिखेगा RISK। नाउ अब क्लू को देखना है, क्लू को देखना है। क्लू आपको ऐसा दिखेगा,
के एंगल आपको 120 डिग्री दिया हुआ है और एल एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। मैंने दोनों पैरेललोग्राम को अलग अलग कर दिया। इससे क्या होगा, आपको एस फाइंड करने में आसानी होगी। इन पैरेललोग्राम रिस्ट RISK एंगल K plus angle S is equals to 180 degree because K and S are adjacent angle. Sum of adjacent angle are supplementary ओके। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंगल के की वैल्यू 120 डिग्री हम रखेंगे प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आपको यहां से 180 माइनस 120 आपको 60 डिग्री मिल गया। एंगल एस की वैल्यू मुझे 60 डिग्री मिल गई, मतलब दिस एंगल हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री। अब उसी तरह L और E में क्या रिलेशन है, अपोजिट एंगल्स। सो एक एंगल S हमें मिल गया। नाउ एंगल L इज इक्वल टू एंगल E दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल in quadrilateral CLUE। तो ये 70 डिग्री मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल का एक नाम दे देते हैं, ES R ऑलरेडी है, M इन ट्रायंगल ESM। अब ESM में आपको E की वैल्यू कितनी मिल गई, 70 डिग्री, और ये हमें मिला था 60 डिग्री, ये 70 डिग्री मिल गया। तो आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल आपको अब सिर्फ ये फिगर देखना है, ESM एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हमें E की वैल्यू मालूम है 70 डिग्री, S की वैल्यू भी मालूम है 60 डिग्री, और एंगल M क्या है, X इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 70 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now X is equal to 180 degree minus 130 degree, that is X equals to 50 degree। X की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 डिग्री। तो ऐसे फिगर देकर के आपको कंफ्यूज किया गया है। आप दोनों जो भी पैरेललोग्राम दिया होता है RISK उसको हमने सेपरेट किया, CLUE दिया हुआ था उसको सेपरेट किया। इससे मुझे S की वैल्यू निकालने में, S की वैल्यू हमने फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड E की वैल्यू फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद हमने ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, वहां से हमने X की वैल्यू फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। एक्सप्लेन दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, हाउ, which of its two sides are parallel। इसके कौन से दो साइड्स पैरेलल हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे सिर्फ दो वैल्यू दी हुई है एंगल की, एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री। एंड हम जानते हैं किसी भी शेप का फिगर हो, एंगल L और एंगल M में क्या रिलेशन है, एडजेसेंट एंगल का, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा, और रीजन क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट
angles are supplementary, या इसके अलावा angles on the same side of transversal, angles on the same sides of transversal, same side of transversal। देखिए ये दो लाइनें हैं, पैरेलल है कि नहीं ये अभी हम बताएंगे, एंड दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इससे ज्यादा बेटर होगा ये लिखना, क्योंकि अभी हमें एडजेसेंट एंगल ये भी सही है ये भी, बट इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 डिग्री आता है तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, सो हम कह सकते हैं सो NM पैरेलल टू KL होगा, NM क्या होगा, पैरेलल होगा KM के, बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मेक्स अ 180 डिग्री। अगर एक ये तो दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन हो नहीं सकता, अगर ये एक पैरेलल लाइन है तो ये ट्रेपेजियम को फॉलो कर रहा है, हेंस क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। इसे हम कैसे रीड करते हैं, मेजर ऑफ एंगल C। कंडीशन गिवन इफ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, हम क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज AB पैरेलल दिया हुआ है DC, AB line is parallel to DC, और angles on the same side of transversal makes 180 degree if lines are पैरेलल। तो यहां पर पैरेलल दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल B की वैल्यू 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, find the measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ, SP parallel to RQ is given। तो कॉन्सेप्ट अभी हमने यूज किया, वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करना है, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस सिंबल इज फॉर 90 डिग्री एंगल, यू नो, बिकॉज SP पैरेलल टू RQ गिवन है, पैरेलल लाइन है, इसीलिए उनके एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल S इज इक्वल टू एंगल S प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने यहाँ से एंगल R की वैल्यू पुट कर दी, एंगल S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट गिव्स 90 डिग्री। सो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। Similarly, you can find the value of P. Angle P plus angle Q is equals to 180 degree because SP parallel to RQ. So, angle P plus 130 degree is equals to 180 degree. Angle P is equals to 180 degree minus 130 degree. Angle P is equals to 50 डिग्री। एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री आएगी।
नाउ नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ यू फाइंड मेजर ऑफ आर, इफ यू फाइंड मेजर ऑफ आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ पी। यहाँ मेजर ऑफ आर की जगह पे मेजर ऑफ एस होना चाहिए। यस, तो आंसर क्या होगा? यस। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? अगर ये V90 हो गया तो ये कैसे फाइंड करेंगे? यू नो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S, एंगल S प्लस एंगल PQRS इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल P 90 plus 90 180, 180 plus 130 310 degree is equals to 360 degree. Now angle P is equals to 360 degree minus 310 degree. Angle P is equals to 50 degree. तो किसी भी तरीके से हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 50 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वांट टू रिकॉल all the properties. Dear student, please recall all the properties of kinds of quadrilaterals. Then you are able to do exercise 3.4. Stay safe at your home. Keep learning. Thank you.